Mumbai Municipal Corporation is among the world's richest civic bodies. Its annual budget is close to rupees 75,000 crore. But despite those big numbers, Mumbai lags behind on multiple fronts when it comes to the state of its civic infrastructure. Why the Mumbai civic polls are important? Because the city of Mumbai, the financial capital of India, is basically a reflection of India. The demographics of Mumbai is a reflection of India. People from different parts of India, be it from UP, Bihar, Gujarat, Marwadis, Punjabis, Marathis, Muslims, Christians predominantly occupy and make up the demography of Mumbai, and that is why the civic polls over here are important. The budget is a staggering more than rupees 75,000 crore, Asia's richest, and the budget is more than some of these states in India also. Goa, Manipur, Arunachal Pradesh, the budget is more than that. Now, what are the key takeaways from this? The election was also held in Pune. The Pawars had united over there. BJP trounced them in Pune. This is most evident during the monsoons between June and September each year. Potholes, overflowing drains, waterlogged streets. It's a story that's never changed, irrespective of who's been in power, in the state or at the BMC. मुंबई वासियों की दिक्कतें हम खत्म करेंगे, चाहे वो रोड की हो, गड्ढों की हो, बरसात के पानी की हो, ट्रैफिक की हो, ट्रैफिक समस्या हो, ये सब जो मुद्दे हैं, हेल्थ की हो, ये सभी मुद्दे हमारा गठबंधन जो है ये दिक्कतें खत्म करेगा, लोगों का जीवन जो है उनको राहत देंगे। जून और सितंबर के बीच जब मॉनसून्स आते हैं तभी ये सारे प्रॉब्लम्स लोगों के सामने आते हैं, चाहे वो पॉटहोल्स के हो, चाहे वो वाटर लॉगिंग के हो। क्या आप दावे से कह सकते हैं कि ये सारी समस्याएं हल होंगी तब तक? बिल्कुल, तो हमारे काम भी हमारे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के शुरू हो चुके हैं, रोड के कंक्रीटाइजेशन के शुरू हो गए। आगे देखिए कि मुंबई पोर्टल फ्री हो जाएगी, वाटर लॉगिंग फ्री हो जाएगी, ये हमारा वादा है और निश्चित रूप से हम वो करेंगे। Interestingly, the term of the BMC after the previous election ended in 2022. For 3 years, the corporation was run by an independent administrator. The elections were delayed for multiple reasons, the incorporation of women's as well as OBC reservations being one of them. Between 1997 and 2022, an undivided Shiv Sena called the shots in the BMC. In 2022, when a united Shiv Sena fought with the BJP as an ally, it won 84 seats as opposed to the BJP's 82. That gave it a slender advantage to have its own mayor in the corporation. Amruta ji, in 2017, when the last BMC elections were happening, I remember Fadnavis ji saying he wants to see a BJP mayor in Mumbai soon. That is now a reality. How important was that target and that dream for him? I'm happy that he works for a mission, and a mission to improve the quality of lives of a common Mumbaikar. So he's working towards it, and for that, whatever it takes in terms of toiling for these elections, he has done, the party members have done, and I'm sure there's a huge responsibility ahead in terms of making the lives of every Mumbaikar and every citizen of Maharashtra more livable and happier. This time around, the alliance dynamics have changed completely. The Shiv Sena is no longer one entity. Eknath Shinde Shiv Sena and the Sena UBT are bitter rivals in opposing camps. And this has worked to the BJP's advantage, where the BJP is now the dominant and senior player in the Mahayuti alliance comprising the BJP and the Shinde Sena. In 2017, as the results were trickling in, Devendra Fadnavis, who was the Maharashtra Chief Minister even back then, had expressed the wish to have a mayor belonging to the Bharatiya Janata Party. That wish has pretty much been fulfilled now in 2026, 9 years on. As the results trickled in, one thing was clear. The BJP will be in pole position and has been able, in a way, to turn the tables on both factions of the Shiv Sena.
Eknath Shinde will remain a junior partner in the alliance, but what is to the Shinde Sena's advantage is the largely more successful spread of its own performance in different parts of Maharashtra in civic polls. The BJP has walked away with an even better performance, with leads in more than 24 municipal corporations in Maharashtra, not just Mumbai. The UBT Sena has been cut down to size in the state overall, if not necessarily in the capital city of Mumbai. As for the Congress party, well, here's a bit of a contrast. It has been struggling for relevance at the BMC level for a long time, after having dominated Maharashtra politics until the mid-90s. In 2016, ahead of the BMC elections, Rahul Gandhi had visited the city, travelled to the Devna dumping ground among other places, and talked very passionately about reviving the Congress in the Brihanmumbai Municipal Corporation. That passionate campaign has been absent this time. And now, in 2026, the Congress was allied with the Bahujan Vanchit Aghadi, led by Prakash Ambedkar, and barely made an impression. Its decline in Mumbai continues. Civic elections are usually fought on matters such as Bijli, Sadak, Pani, but identity politics appear to also dominate the discourse this election campaign. The BJP leader K. Annamalai's remarks about Mumbai was met with an abusive response by Raj Thackeray, part of the alliance with the Uddhav Thackeray Sena. But the cousins fighting the polls together, as well as the rhetoric spewed during their campaign, did not have adequate electoral traction. Here we are looking at the only city in our country where a triple engine Sarkar is possible. Modi ji at the center, Devendra Fadnavis at the state, and the BJP mayor and BMC. Because Bombay is not a Maharashtra city, it is an international city. काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडू बंद रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय, तुझा काय संबंध आहे इथे याचा. यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाव लुंगी आणि बजाव पुंगी. आणि तो अण्णामलाई आला, त्याला मला खास धन्यवाद द्यायचे. का धन्यवाद? कारण तो नकळत बोलून गेला, भाजपच्या मनातलं जे काळं आहे तो ते बोलून गेलेला आहे. असंच ज्या वेळेला लोकसभेच्या सुमारास अन्नामलाई ये भाजपा का चेहरा है जो जीरो है, खुद का डिपॉजिट बचा नहीं सके, खुद जीत नहीं पाए, खुद वहां ऐसे दिखा रहे थे कि अभी अगले प्रधानमंत्री वही है, लेकिन जीरो ये तमिलनाडु ने बताया. ये आके हमें बताएंगे मुंबई क्या है, महाराष्ट्र क्या है. अन्नामलाई ने महाराष्ट्र का विरोध किया है और महाराष्ट्र ये सहन नहीं करेगा. अन्नामलाई और भाजपा ने महाराष्ट्र का अपमान किया है. उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का जो गठबंधन था और जिस तरह के कमेंट्स किए गए, खास करके अन्नामलाई के बारे में, चाहे वो दूसरे मुद्दे भी हो, क्या एक कोशिश की गई उनके अलायंस द्वारा इस सिविक इलेक्शन को एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के इलेक्शन को कन्वर्ट करने में, और क्या लोगों ने इस तरह की पॉलिटिक्स को नकारा है इस इलेक्शन में? सर हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना कि इमोशन को और इमोशनल मुद्दे को लोगों ने नकार दिया है और ओनली डेवलपमेंट के मुद्दे को स्वीकार कर दिया है, क्योंकि लोग चाहते हैं और डेवलपमेंट चाहते हैं. हम 3.5 साल में, मैं जब मुख्यमंत्री था 2.5 साल और अभी देवेंद्र जी है मुख्यमंत्री, ये 3.5 सालों में जो मुंबई के लिए काम हमने किया है, रोड का कॉन्क्रीटाइजेशन हो, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, मेट्रो के रुके पड़े काम हो, कार शेड के काम हो, ये सभी जो काम जो है शुरुआत हमने कर दी थी. तो लोगों को लगा था कि अभी ये इतने कम समय में मुंबई के लिए इतना काम कर रहे हैं. जो इससे पहले 20-25 साल जिनकी सत्ता थी, सरकार थी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुंबई को अपने स्वार्थ के लिए देखा, मुंबई को एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को देखा, और इसीलिए ये जो इमोशनल के मुद्दे कुछ लाए यहाँ पर, लोगों ने उसको सबको नकार दिया, ठुकराया है और डेवलपमेंट के मुद्दे को स्वीकारा है. It did not stop there. The discourse was also about the mayor of Mumbai being a Marathi and a Hindu. मुंबईचा महापौर महायुतीचाच होणार, मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार आणि मुंबईचा महापौर मराठीच होणार. मुंबईचा महापौर हा मराठीच होणार. आतापर्यंत हा मराठी शिवसेनेने महापौर केलेला आहे, पण भारतीय जनता पक्ष आमच्या सोबत असताना त्यांनी उपमहापौर काय केले होते हा त्यांनी स्वतःला प्रश्न विचारला. What stands out is the scale of the sweep. Yes, in Vasai Virar, in Malegaon, Parbhani and Bhiwandi, the BJP has been pegged back. But elsewhere, the party along with the Shinde Sena has surged ahead. मुंबई वासियों ने इस बार डेवलपमेंट, हमारा एजेंडा चुनाव का डेवलपमेंट था,
तो मुंबई वासियों ने डेवलपमेंट को चुना है और जो डेवलपमेंट के विरोधी थे एंटी डेवलपमेंट को नकारा है और इमोशनल मुद्दे को नकार दिया है। यहाँ पर कुछ लोगों ने इमोशनल मुद्दे को चुनावी मुद्दे बनाए थे, लेकिन हमने सिर्फ हमारी गठबंधन ने डेवलपमेंट का मुद्दा बनाकर ये चुनाव लड़े, इसलिए लोगों ने डेवलपमेंट के मुद्दे पे हमें सपोर्ट किया है। उनको डेवलपमेंट चाहिए। और अगर बीएमसी की बात करें शिंदे साहब, तो मेयर की बात अभी ऑब्वियसली आएगी। अभी डिपेंडिंग ऑन सीट शेयर्स कितने हैं और कौन कितनी सीट जीतता है, इसके बारे में क्या डिस्कशन चल रही है बीजेपी के साथ? मेयर कौन होगा मुंबई का? देखिए, हमारा एक ही कहना है कि मुंबई का विकास करना, डेवलपमेंट करना, और मुंबई का मेयर महायुति का बनेगा, ये पहले हमने कहा था। निश्चित रूप से हमारी लड़ाई कुर्सी की नहीं है, सत्ता की नहीं है। हम मुंबई वासियों को क्या दे सकते हैं, मुंबई वासियों के जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये हमारी प्राथमिकता है। एक और सवाल सर आपसे, क्योंकि जो आपके विपरीत लड़ रहे थे, आपके विरुद्ध जो लड़ रहे थे, वो कह रहे थे कि दे आर द ट्रू लेगेटीज ऑफ बाला साहेब ठाकरे, लेकिन ये जो नतीजा निकला है ये क्या कहलाता है? उनको क्या संकेत दे रही है मुंबई की इलेक्ट्रेट? नहीं, देखिए, इसमें पहले ही कहा कि मुंबई वासियों ने इमोशनल मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा या चुनावी मुद्दा जो बना रहे थे, या जो भी उन्होंने जातवाद का मुद्दा लाया था, वो सब लोगों ने ठुकरा दिया है। यहाँ पर इतना ही मैं कहूंगा कि ये डेवलपमेंट, यही ब्रांड लोगों ने चुना है। डेवलपमेंट यही ब्रांड लोगों ने चुना है। क्या आपको लगता है कि जो आपके विपरीत लड़ रहे थे उनकी रेलेवेंस कम होती जा रही है या फिर डिक्लाइन होती जा रही है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में? क्योंकि चाहे मुंबई की बात हो या फिर दूसरे इलाकों की बात हो, उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी नहीं रही। कांग्रेस तो डिक्लाइन में है ही, लेकिन जो लोग ठाकरे लेगेसी की बात करते हैं उनको आप क्या संकेत देंगे? आखिरी सवाल है सर आपसे। देखिए, आखिर जनता सब तय करती है। अब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट नंबर पर है और हमारी शिवसेना पार्टी सेकंड नंबर पे है। बाकी तो बहुत दूर दूर तक चले गए। अभी इसी में से उन्होंने सीख लेना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। And let us also not forget, the party bigwigs from the center for the BJP were not the most visible during this campaign. This establishes Devendra Fadnavis as a major force in Maharashtra politics, a strong regional satrap of the BJP in one of India's most critical states. महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। हमारे अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र का ये महाविजय महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। और मैं हमारे मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी, इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की ये विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका ये विजय है। और हम लोग ये संकल्प करते हैं कि इस महाविजय के बाद हम सभी लोग महाराष्ट्र के एक एक नगर को यहां पर उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। एक एक नगर का विकास होगा, जन जन का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा, सभी को सारी बुनियादी सुविधाएं मुहैया होगी। इस विश्वास के साथ हम लोग इस चुनाव में कूदे थे और जनता ने एक ऐसा आशीर्वाद दिया है। ये मामूली विजय नहीं, ये अतिभव्य इस प्रकार का विजय है। इसलिए ये विजय मैं सभी को समर्पित करते हुए आप सभी का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं, सभी को बधाई देता हूं। BJP once again gets it together in this election as well, with the saffron flag flying high. How tough was this election for you as the wife of the chief minister, sitting at home and handling a man who was so busy? First of all, I must say, Navika, I am overwhelmed and happy
about the results, the way it has come up. And for this, I would thank definitely Narendra Modi ji for his vision, which was followed from the Karyakarta level up to Devendra ji in BJP, and also Mahayuti was together with us. So it's all the efforts of the cadre, Devendra ji, each and every Karyakarta, which has helped us to see this day. So yes, it has been overwhelming, but the real heroes are the voters of today who have successfully differentiated between politics of development and politics of division. The overwhelming result in favor of the Mahayuti has raised serious questions now about the state of the opposition. What happens to the Congress at the grassroots? What happens to the future of the UBT Sena? Crucially, if the Maharashtra Navnirman Sena is consistently losing appeal, what about the future of Raj Thackeray and his relevance in Maharashtra politics? Ajit Pawar's NCP fought separately in Mumbai and together with the Sharad Pawar NCP in Pune and lost both. While it remains part of the NDA at the state and the national level, will there be a recalibration in how the Ajit Pawar NCP proceeds from here on? सर वैसे तो बीएमसी कहने को एक लोकल बॉडी का चुनाव है, लेकिन इससे धमाकेदार कुछ नहीं हो सकता। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई लोगों को लगता है कि बीजेपी पहली बार बीएमसी में शायद अपना मेयर बैठाने जा रही है या उसकी कोशिश कर रही है, लेकिन उससे भी बड़ी बात कहा यह जा रहा है कि यह चुनाव तय करेगा कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है क्या वो पॉलिटिकली खत्म हो जाएगी। आपको लगता है बहुत कुछ स्टेक पर है? देखिए, पहली बात तो ये चुनाव बीजेपी का मेयर बैठाने के लिए नहीं है, ये चुनाव हमारी महायुति का मेयर बैठाने के लिए है, मुंबई को अल्टरनेट गवर्नेंस का मॉडल देने के लिए है। 25 वर्ष मुंबई की महानगर पालिका में जो भ्रष्टाचार चला, उस भ्रष्टाचार से मुंबई को मुक्त करने के लिए है और मुंबई में रहने वाले जो मुंबईकर है उनकी आशाएं, अपेक्षाएं और आकांक्षाएं पूरा करने के लिए काम करने का एक चुनाव है। जहां तक हमारी अलायंस का सवाल है तो मुझे पूर्ण रूप से ये लगता है कि हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे, मेजॉरिटी से जीतेंगे और हमारे अलायंस का मेयर बनेगा। और मैं ऐसा कभी मानता नहीं कि कोई पार्टी समाप्त हो सकती है, इसलिए हमारे लिए ऐसा लक्ष्य भी नहीं है कि उद्धव ठाकरे की सेना समाप्त हो जाए। देखिए, पार्टियां बनती है, बिगड़ती है जनता के मत, कोई नेता किसी पार्टी को समाप्त नहीं कर सकता, इसलिए वो हमारा एम भी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि इस चुनाव में उनको एक बड़ी अच्छी शिकस्त हम लोग देने वाले हैं। सर, मुझे याद है अभी प्रधानमंत्री जी ने जब बिहार में आप लोग जबरदस्त जीत हासिल किए तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो, और स्पेशली जहां परिवारवाद चल रहा है, ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि अंदर गुस्सा भरता जा रहा है। और उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस के अंदर देखिएगा कि बगावत होगी और कांग्रेस जो है वो और टूटेगी। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या उद्धव ठाकरे जो बीएमसी के, एक बार बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि भाई बीएमसी के हिसाब से ही चल पा रहे हैं, नहीं तो अब तो खत्म हो जाते अब तक, अगर वो हार गए तो आपको लगता है उनकी पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी और टूट जाएगी या लीडरशिप चेंज की मांग उठेगी? देखिए, वो पार्टी जो है ना, वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो मालिक है उस पार्टी के, इसलिए मालिक चेंज नहीं हो सकता है। नीचे के जो है वो बेचारे सारे सैनिक और बाकी सारे जो लोग हैं वो इधर उधर जाते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, मालिक की मर्जी आएगी वैसा वो चलता रहेगा। हाँ, इतना जरूर है। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं कि चुनाव में हारना या चुनाव में जीतना ये मायने नहीं रखता, लेकिन हारने के बाद उस हार से आप क्या सीख लेते हो ये मायने रखता है। कांग्रेस की हालत क्यों खराब है, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, किसी भी हार से वो सीखते नहीं है, वही मूर्खता, उसी प्रकार का व्यवहार वो लगातार करते रहते हैं। अगर उद्धव जी और उनकी सेना इस हार से नहीं सीखेंगे तो आगे भी उनका हश्र यही होगा। मुझे यह लगता है आपकी लोगों में जाने की कितनी मंशा है, संघर्ष करने की कितनी मंशा है, पार्टी चलाना है तो उसको समय देने की कितनी मंशा है, इस पर निर्भर करता है। For now, the BJP is the dominant political player in Maharashtra. The shape of its politics, the direction of its governance at all levels will have the BJP's imprint.
She asks tough questions like no other journalist. Rupee volatility driven by